हेलो क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल। ये वर्टिकल सर्किल है, इसमें अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो डिफरेंट पॉइंट्स पर वेलोसिटी और टेंशन क्या होंगे। तो ये मैंने फिगर बनाया है और देखिए लिखा है सपोज ए बॉडी ऑफ मास m tied at one end of a string of length small l is being revolved in a vertical circle in anti-clockwise direction. Suppose the center of the circle is O, highest point is A and the lowest point is B. Suppose at any instant body is at point P of the circle whose angular displacement from point B is थीटा। किसी भी टाइम पर बॉडी पॉइंट P पर है और जो एंगुलर डिस्प्ले ये बना रही है वर्टिकल से एंगल थीटा। मान लीजिए पॉइंट P पर वेलोसिटी है v, लेट वेलोसिटी एट पॉइंट P इज v and T is the tension in the string. Tension in the string at point P. Now two forces act upon the body in the position P. Number one, weight mg of the body which is acting vertically downwards and tension T in the string which is towards the center O of the circle. Now आप देखें ये जो T है इसके अपोजिट लग रहा है mg cos थीटा, तो T minus mg cos theta, this is net radial force. This net radial force T minus mg cos theta provides the necessary centripetal force for circular motion of the body. So T minus mg cos theta is centripetal force mb square upon L. L is the length of the string. So T is equal to mb square by L plus mg cos theta. This is your first equation. As the body goes upwards, जब ये बॉडी ऊपर जाती है on circular path, its velocity v goes on decreasing and its angular displacement theta goes on increasing. तो as cos theta decreases, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है तो वेलोसिटी कम होती जाएगी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बढ़ता जाएगा और क्योंकि cos थीटा कम होता जाता है। Hence from equation 1 the tension T in the string goes on decreasing. वेलोसिटी कम होती जाती है, थीटा बढ़ता जाता है, cos थीटा कम होता जाता है, इसलिए टेंशन भी कम होता जाएगा। Hence from equation 1 the tension T in the string goes on decreasing and becomes minimum at the highest point A. highest point A पर ये कम से कम रह जाता है। If the velocity of the body at the highest point A is Va, then tension at A यहाँ से देखिए TA is equal to mVA square by L plus mg cos 180, ऊपर पहुँच गया तो 180. So TA tension at point A is mVA square by L minus mg. अब if velocity Va be decreased, अगर ये हाईएस्ट पॉइंट ए पर वेलोसिटी कम करते जाएं द टेंशन टी ए विल आल्सो, ये कम करें तो टी ए भी कम होगा। टी ए विल डिक्रीज एंड बिकम जीरो एट ए सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। टेंशन जीरो हो जाएगा अगर ये वेलोसिटी वी सी है तो एम बी सी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी। सो वी सी इज रूट जी एल एंड दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी. दिस इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी. मीन्स द बॉडी विल क्रॉस ओवर highest point A if the velocity at point A is at least root GL. अगर root GL velocity है तो ये highest point को क्रॉस कर जाएगा and if it is less than root GL the string would slack. डोरी ढीली पड़ जाएगी. अब पॉइंट P और पॉइंट A पर यहाँ से शुरू हुआ अब यहाँ पर, तो पॉइंट P और पॉइंट A पर हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट A.
तो kinetic energy at P plus potential energy at P is kinetic energy at point A plus potential energy at point A. पॉइंट P पर वेलोसिटी v है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर एम जी यहीं से मेजर कर रहे हैं तो एट जीरो हाफ एम ए पर वेलोसिटी v है तो हाफ एम बी ए स्क्वायर एम जी इंटू ए डी. सी द फिगर. सो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी. ए डी क्या है? ए डी है ए ओ प्लस ओ डी. सो एल प्लस एल कॉस थीटा. तो मैंने लिखा यहाँ पर ए डी की जगह एल प्लस एल कॉस थीटा. So v square minus v square is 2gl plus 2gl cos theta. Now, if the body just crosses the highest point A, then VA is VC. अगर बॉडी हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर जाती है निश्चित रूप से इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट ए पर क्रिटिकल वेलोसिटी VC के बराबर होगी विच इज रूट GL. तो चलिए यहाँ रख दीजिए. तो v square minus GL is 2gl plus 2gl cos theta. This implies that v square is 3gl plus 2gl cos theta. So v square is 3 plus 2 cos theta into gl. So velocity will be root 3 plus 2 cos theta into gl. This is the velocity. In general, this is the velocity. Now, substituting this value in equation 1, tension T, ये आपको मालूम है T बराबर mb स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा. हम यहाँ पर v की वैल्यू रख रहे हैं. सो m बाई एल वी स्क्वायर की जगह हमने लिखा 3 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू जी एल प्लस एम जी कॉस थीटा. तो कैलकुलेशन के बाद 3mg प्लस 2mg कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा. दिस इज टेंशन T इज 3mg विद इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा. तो ये दो फार्मूलाज हैं वेलोसिटी और टेंशन का. बट ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोएस्ट पॉइंट B पर देखें, आप जानते हो वहाँ थीटा जीरो होगा, तो मैंने थीटा की जगह जीरो लिख दिया. तो वेलोसिटी एट पॉइंट B इज रूट 5gl. टेंशन एट पॉइंट B फ्रॉम दिस फार्मूला इज 6mg. उसी तरह एट पॉइंट C थीटा इज 90 डिग्री. सो वेलोसिटी एट C एंड टेंशन एट C आ जाएंगे रूट 3gl एंड 3mg. हाईएस्ट पॉइंट A पर जब पहुँचेंगे तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट A इज रूट GL and tension at highest point TA is 0.